Uh, Today we are going to talk about the instabilities in plasma. Okay. सबसे पहले इंस्टेबिलिटी का मकसद क्या है? जैसे हमने ओ मोड में देखा था कि वी हैव दिस रिलेशन, और इसमें आप ये देखें I can write it like that, और यहाँ पर if ओमेगा is less than ओमेगा p, तो हमारे पास जो ck है that is going to be an imaginary term. तो ये आपके पास जो प्रोपगेशन वेक्टर है k that comes imaginary. अगर ये imaginary हो जाता है तो फिर as you know कि जो आपके पास oscillating quantities हैं उसमें just like E1 है, that is some amplitude E1 exponential iota kx minus omega t. काइंडली किसी का स्पीकर ऑन है उसको बंद करें. Okay, now you can see here k. Now if I put k as imaginary of something, then from here you can see exponential minus alpha x exponential minus iota omega t. So this part will give you damping with respect to space. If we have imaginary omega here, then we will get damping with respect to time. But here it is, you can see is damping is appearing in with respect to this x, which is the distance or the space. So this is the damping with respect to space. So there are certain conditions in which the plasma waves are going to get damped in the plasma, and there are certain conditions for it. So in this chapter we will look for the conditions for the instability, that what are the necessary condition if we are discussing some waves, then what are the conditions in which this wave is going to damp or grow. Both if you think that if I have minus iota here, then I will get if I have minus iota here, then I will get plus alpha x here, and that will give you a growth of the wave with respect to space. That means as the wave propagates, it will start growing. So सर ये आप चैप्टर 6 करवा रहे हैं ना? जी जनाब, चैप्टर 6. तो जो आपका वेव का स्ट्रक्चर बनेगा, अगर वेव डैम्प कर रही है with respect to space, so it will be something like that. ठीक है कि वेव जो है वो with respect to space जो है वो डैम्प कर रही है, और अगर ग्रोथ आ रही है, so you can think of a structure in which the wave starts off and increasing its amplitude. So that will be the growth structure, that will be the damping structure. So now I'm going to start off with the certain conditions that what is the difference between the stability and equilibrium. These are two different things. Equilibrium is another thing, stability is another thing. So now I'm going to talk about the stability and the equilibrium. So we have different equilibriums, like if you think let me give
that if we have a condition like that, we have a situation like this, an object placing something like that, so it is not in equilibrium. As you know, there are two conditions of the equilibrium that you have to satisfy, that all the forces acting on the object must be equal to 0, or the torque, the second condition of the equilibrium, that the torque produced by these forces will be acting on the object is going to be 0. So you have to satisfy these two conditions for the equilibrium. Now you can see that, consider something like that. So this is a stable situation. You can call it neutrally stable. So now I'm going to talk about the stability and equilibrium at the same time. So let us consider this case. You have an object placed something like that. So that's a stable that's called a stable equilibrium. जी आमिर क्या कह रहे हैं? आवाज बीच में कट गई थी, अभी आने लगी है, फिर मैं समझा शायद आपका माइक म्यूट हो गया है। नहीं माइक म्यूट तो नहीं है। चलें, अब ये देखें यहाँ पर इट्स अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। And that's unstable equilibrium. So now you can think of the stability and equilibrium. These are two different things. These two states both are in equilibrium, but this one is a stable equilibrium, that's an unstable equilibrium. And similarly, we can think of a situation like that, an object placed here. This is in equilibrium with linear stability and non-linear instability. Means that if I'm going to take higher order terms, higher order oscillations, then this object is going to be unstable somewhat here and unstable somewhat here. But if I'm talking the first order or the lowest order perturbations, then this system or this object is in equilibrium. Similarly, I can draw it something like that. Now this object is in unstable equilibrium, but it is in the lowest order. If I take the higher order terms, then it will going to be a stable term. So how you can justify this, that if usually the instability comes from certain free source of energy. So basically, when instability occurs in a system, then it tries to you can say कि जो फ्री एनर्जी है उसको कंज्यूम करने की कोशिश करती है इंस्टेबिलिटी, और सिस्टम को दोबारा स्टेबिलिटी की तरफ लेके आने की कोशिश करती है. सो यू कैन थिंक ऑफ दिस सिचुएशन दैट अपरेंटली यहाँ पर सिस्टम जो है वो अनस्टेबल सिचुएशन में है, लेकिन अगर हम यहाँ पर इसको देखें कि हायर ऑर्डर में ये स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है, यानी कि अगर इसमें इंस्टेबिलिटी जनरेट होती है, हम हायर ऑर्डर टर्म्स को लेके आते हैं, तो ये सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा. सो हर दफ़ा जब हम इंस्टेबिलिटी की बात करते हैं, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो जो आपके पास सिचुएशन है वो आपके पास हमेशा एक नेगेटिव इम्पैक्ट की तरफ जाएगी. वी कैन थिंक ऑफ सिचुएशंस जहां पर आपके पास जो इंस्टेबिलिटी है वो बेनिफिट के लिए भी होती है, लेकिन इंस्टेबिलिटी का नुकसान ये है कि जस्ट लाइक
जो आपके पास कन्फाइंड प्लाज्मा होता है, वहां पर जो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू हीट अप द प्लाज्मा, वहां पे ये जो इंस्टेबिलिटीज जनरेट होती हैं, ये जो आपके पास सिस्टम के पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है जो कि फ्यूजन के लिए रिक्वायर्ड होती है, ये इंस्टेबिलिटी वो तमाम एनर्जी अपने साथ ले जाती है। तो उस वजह से हमारे पास वहां पर एक ड्रॉप ऑफ एनर्जी आता है, या वेव्स जो हैं वो एक्साइट होके एनर्जी सिस्टम से लेके दे एग्जिट द सिस्टम। तो वहां पर हमारे पास ये इंस्टेबिलिटीज जो हैं वो हार्मफुल होती हैं। तो इंस्टेबिलिटीज जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं, यूजुअली जो हमारे पास हम सिस्टम लेते हैं वो कंसिडर करते हैं कि आपके पास, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर मेरे पास सिग्नल आ रहा था कि शायद थोड़ा सा नेटवर्क का थोड़ा सा इशू मुझे फील हो रहा था, लेकिन शायद ठीक है। ओके, अब मैं आगे आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि यूजुअली हम जो है एक अनपर्टर्ब्ड स्टेट लेते हैं। सर एक क्वेश्चन था सर, क्या आपने बताया कि दो एक्सट्रीम स्टेट्स पे ही होता है, दरमियान में कोई स्टेट नहीं, ये नहीं सिस्टम नहीं ले सकता? मतलब कि सर जहाँ तो ये स्टेबल में होगा, यहाँ स्टेबल होगा, दरमियान वाली कोई स्टेट नहीं हो सकती? मतलब कि कोई जब वो उधर जा रहा होगा, अगर अनस्टेबल भी है तो देखें ना, जहाँ देखें ये जो आपके पास सिचुएशन है ये तकरीबन मिडिल की है ना, कि अगर आप जरा सा डेविएट करेंगे, अपने एक रीजन को वॉयलेट करेंगे, तो वो अनस्टेबिलिटी की तरफ चली जाएगी। एक और होती है मेटा स्टेबल, कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो सिस्टम है जी वो मेटा स्टेबल, आप उसको यू कैन थिंक ऑफ लाइक दैट, कि आपके पास एक मिडल की सिचुएशन ऐसे है, समथिंग लाइक कि फॉर सर्टेन ऑसिलेशंस यू कैन थिंक ऑफ कि इस रेंज तक जो है वो सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम। जब वह खास रेंज को क्रॉस करेगा तो फिर वो अनस्टेबल। ये वाला जो सिचुएशन है, ये इट इज स्टेबल फॉर ईच एंड एवरी टाइम, फॉर ईच एंड एवरी पोजीशन। ये टोटली अनस्टेबल है, और ये दरमियान में मेटास्टेबल, यू कैन थिंक ऑफ कि इन दोनों के दरमियान की सिचुएशन। ठीक है, ठीक है सर। तो यूजुअली हम एक अनपर्टर्ब्ड स्टेट लेते हैं जो कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर यूजुअली जो हम कंसिडर करते हैं वो हम ये कंसिडर करते हैं कि जो आपके पास पार्टिकल्स हैं वो मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन है। Maxwellian distribution means something like that. ये आपके पास ये वेलोसिटी का ग्राफ है और यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स जो हैं वो विद जीरो वेलोसिटी मौजूद हैं, बहुत कम है जो कि हायर वेलोसिटी पर हैं, और बहुत कम जो इस साइड पर है। ठीक है, तो ये मैक्सिमली यहाँ पर ये एवरेज टेम्परेचर के ऊपर तमाम पार्टिकल्स मौजूद हैं। यानी कि अगर आप किसी भी यूजुअली एक रूम में अगर आप टेम्परेचर नोट डाउन करते हैं तो वो आपको ये मैक्सिमली डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ही आपको टेम्परेचर बता रहा होता है, अगर आपने कोई सोर्स नहीं रखा तो हम यूजुअली कंसिडर कर रहे होते हैं मैक्सिमलियन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपके पास जो है पार्टिकल्स इस तरीके से तमाम डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ऑल lying at almost the same temperature or the thermal velocity you can think of. अब हम अगर ऐसी स्टेट्स कंसिडर करें जो कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में ना हो, ठीक है, तो यानी कि तमाम फोर्सेस जो हैं वो बैलेंस में ना हो,
तो वहां पर हमें एक जो चीज रिक्वायर्ड होती है वो ये है कि फ्री एनर्जी। अगर आपके सिस्टम को फ्री एनर्जी अवेलेबल है तो सिस्टम जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा, या फिर फ्री एनर्जी विल कॉज वेव एक्साइटमेंट। ठीक है, और यू कैन से द वेव विल गेट एक्साइटेड बिकॉज ऑफ दिस फ्री एनर्जी। ठीक है, और जब आपके पास सर थोड़ा सा फ्री एनर्जी को डिफाइन कर देंगे आप? कोई भी आपके पास देखें, मैंने पहले आपको बताया कि आपके पास जो सिस्टम है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब ये है कि वहां पर जो तमाम फोर्सेस हैं वो बैलेंस में हैं। ठीक है, ये फोर्सेस किस किस्म की हो सकती हैं? जैसे हमने आप लोगों को पहले एक दफा जिक्र किया था मैंने, जैसे पार्टिकल प्रेशर है, ठीक है, और साथ हमने एक बात की थी मैग्नेटिक प्रेशर की। ठीक है, जो आपके पास ये पार्टिकल प्रेशर आता है विद द डेंसिटी और ये विद मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये जब इन बैलेंस हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके पास सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम पे है। जो भी अवेलेबल आपके पास सिस्टम में फोर्सेस हैं वो बैलेंस में है। अब आप कोई सोर्स ऑफ फ्री एनर्जी डालते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी कुछ भी हो सकता है, वही अभी मैं डिफाइन करने लगा हूं कि इसी सोर्स ऑफ फ्री एनर्जी के मुताबिक आप अपनी इंस्टेबिलिटीज को जो है वो करेक्टराइज कर सकते हैं कि किस किस्म की इंस्टेबिलिटी। जैसे लेट सपोज आपको एक बीम है एनर्जेटिक पार्टिकल की जो कि प्लाज्मा में से गुजार रहे हैं। अब ये आपके पास एक एक्स्ट्रा सोर्स है फ्री एनर्जी का जो कि इनसाइड नहीं है, दैट इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। तो ये जो आपके पास फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट कैन एक्साइट वेव्स। ठीक है, तो लेकिन अब हमने इसके ऊपर कंडीशन पता करनी है कि ये जो आपके पास आपने फ्री सोर्स दिया है एनर्जी का, इसकी क्या कंडीशंस होंगी या किन कंडीशंस पे जाके ये वेव को जो है वो एक्साइट करेगा। ठीक है, ये हर ये अभी हम देखेंगे कि देयर आर सर्टेन कंडीशंस ऑन दिस, जो आपके पास बीम है, इस बीम की क्या वेलोसिटी हो, ठीक है, कि वो आपके पास जो है वो एक्साइटमेंट या आपके पास वेव की जो है वेव को एक्साइट कर सके। ठीक है, अब यहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन द फ्री एनर्जी हमारे पास इंस्टेबिलिटीज आती हैं। पहली है स्ट्रीमिंग इंस्टेबिलिटी। तो बुक में इसको बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आई एम नॉट राइटिंग इट डाउन हेयर, मैं जस्ट कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। जैसे स्ट्रीमिंग इंस्टेबिलिटी के लिए सोर्स ऑफ फ्री एनर्जी जो है वो होगा बीम ऑफ एनर्जेटिक पार्टिकल्स। या फिर करंट ड्रिवन थ्रू प्लाज्मा। सो ये दोनों जो हैं ये आपके फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी होंगे। ठीक है, तो उससे होगा क्या कि आपके पास जो पार्टिकल्स हैं उनकी जब आप उधर से बीम गुजारेंगे, सो दे हैव सर्टेन ड्रिफ्ट्स रिलेटिव टू ईच अदर। तो ये जो ड्रिफ्ट एनर्जी है जो पार्टिकल्स को मिलेगी ये यूज होगी वेव को एक्साइट करने में। ठीक है, और वहां पर जो वेव की ऑसिलेशंस हैं वो गेन होंगी और एट द एक्सपेंस ऑफ दिस बीम एनर्जी। ठीक हो गया। सेकंड है हमारे पास, जिसको हम रेले टेलर इंस्टेबिलिटी कहते हैं। इसका सोर्स क्या है? कोई नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स।
ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में जैसे ग्रेविटी, ठीक है, ये इसके अलावा कोई भी और फोर्स जो कि आपकी ना इलेक्ट्रिक हो ना मैग्नेटिक हो, उसको हम कंसिडर करते हैं यहाँ पर। और इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो है डेंसिटी ग्रेडियंट। इस इंस्टेबिलिटी में ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट और आपके पास नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। अब यहाँ पर होता क्या है, इसको आप बड़ी इजीली समझ सकते हैं। अगर मैं इसकी एक डिफाइन करना चाहूँ, सो इट विल बी समथिंग के आपके पास कोई एक मीडियम है, फर्ज करें कि यहाँ पर कोई ये लिक्विड है और ये ग्रेविटी इसके ऊपर एक्ट कर रही है। यहाँ पर ये ऊपर हैवी फ्लूइड है, जिस तरह आप समझ लें कि इन्वर्टेड ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। आप लोग अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहें, बड़ी इजीली एक्सपेरिमेंट हो सकता है। आप एक ग्लास को जो है वो फिल करें पानी से, उसको थोड़ा सा मतलब 2/3 फिल करें और उसके ऊपर एक कार्ड बॉक्स रखें और उसको जो है वो फ्लिप ओवर कर दें टेबल के ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद आप इस कार्ड को अगर नीचे से निकाल लेंगे उसके, तब भी वो पानी थोड़ी देर के लिए अपनी जगह पर स्टेबल रहेगा। लेकिन ये जो आपके पास इक्विलिब्रियम होगी, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगी। जरा सा आपने वाइब्रेशन दिया तो वो सारा पानी जो है वो स्पिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सो इट विल बी अ सिचुएशन समथिंग लाइक दैट। ये इधर अगर कोई मामूली सा रिपल जनरेट होता है, ठीक है, सो दैट विल कॉज कि आपका जो ये ग्रेविटी यहीं एक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है, ये इसको मैं इस तरह लिख दूं, इन्वर्टेड ग्लास ऑफ वाटर। ये हमारे पास जो ये जो आपके पास सिचुएशन है, ये कहलाती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या सिचुएशन होती है कि हमारे पास जो मैंने आपको बताया डेंसिटी ग्रेडियंट, तो डेंसिटी ग्रेडियंट की वजह से आपके पास लेट सपोज के आपने डेंसिटी इस तरीके से क्रिएट की हुई है, जैसे आप एक फ्यूजन डिवाइस में देखें कि जहां से करंट पास हो रहा होगा वहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी, और जैसे जैसे आप उससे दूर होते जाएंगे तो डेंसिटी कम होगी। दैट विल क्रिएट अ डेंसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। यानी कि सेंटर में डेंसिटी ज्यादा है और आउटसाइड पे कम है। तो यहाँ पर आपके पास समझ लें कि अगर आप इसको इन्वर्टेड पोजीशन में देखें, तो अगर मैं इस तरह से बताऊं आपको, इंस्टेड ये you have a high density here and then you are talking about low density. So यहाँ पे आपके पास डेंसिटी ग्रेडियंट है, ठीक है, इस तरीके से ये ऊपर ऊपर हाई डेंस है, हाई डेंसिटी है, नीचे लो डेंसिटी है और नीचे लो। अब ये लो डेंसिटी जो है ये हाई डेंसिटी को सपोर्ट कर रही है, ठीक है, और यहाँ पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है। तो ये एक आपके पास अनस्टेबल सिचुएशन बनती है, ठीक है, जिसको हम अभी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, जो इसके साथ जिसको हम ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये एक आपके पास अनस्टेबल सिचुएशन बनती है जहां पर आपके पास, और इसके नीचे हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पर नीचे मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये आपके पास लो डेंसिटी प्लाज्मा बनाता है और ये ऊपर हाई डेंसिटी प्लाज्मा बनाता है। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सपोर्ट कर रही होती है प्लाज्मा को, या उसने प्लाज्मा को समझ ले कि अपने कंधों पे उठा के रखा हुआ है, और जैसे ही यहाँ पर जरा सी कोई फ्लक्चुएशन होती है तो ये आपके पास जो प्लाज्मा है ये अनस्टेबल सिचुएशन में चला जाता है, ठीक है। तो ये हो गई आपके पास दो इंस्टेबिलिटीज। तीसरी है
यूनिवर्सल इंस्टेबिलिटीज। यूनिवर्सल इंस्टेबिलिटीज क्या है कि इसमें आपके पास कोई ऑब्वियस ड्राइविंग फोर्स नहीं होती, जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स, और आपके पास स्टिल जो प्लाज्मा है वो आपके पास परफेक्ट इक्विलिब्रियम में नहीं होता, बिकॉज प्लाज्मा जो है वो कन्फाइंड होता है। ये उम्मूमन उन सिचुएशन में एग्जिस्ट करता है जहां पर आपके पास प्लाज्मा जो है वो कन्फाइंड है। इस कन्फाइनमेंट की वजह से आपके पास जो है वो प्लाज्मा प्रेशर एग्जिस्ट करता है, और ये प्लाज्मा प्रेशर जो है दैट इज द रीजन बिहाइंड दिस इंस्टेबिलिटी। ये एक बेसिकली एक टाइप ऑफ फ्री एनर्जी है जो कि आपके पास किसी भी फाइनाइट प्लाज्मा में हमेशा आपके पास अवेलेबल होती है, और इनसे बनने वाली जो इंस्टेबिलिटीज है उनको हम यूनिवर्सल इंस्टेबिलिटीज कहते हैं। इसके बाद नंबर 4 पे है काइनेटिक इंस्टेबिलिटीज। काइनेटिक इंस्टेबिलिटीज जो हैं, अभी जो हम कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं फ्लूइड थ्योरी। अभी तक हमने काइनेटिक थ्योरी को नहीं देखा। तो फ्लूइड थ्योरी में यूजुअली हम जो सिस्टम है उसमें मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, जो कि एक एवरेज वैल्यूज आपको देती है। तो अगर आपके पास नॉन मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन हो या आपकी इक्विलिब्रियम से आपकी डेविएशन हो, तो फिर आपके पास जो इंस्टेबिलिटीज जनरेट होती हैं वो काइनेटिक इंस्टेबिलिटीज होती हैं। जस्ट लाइक लेट सपोज कि आपके पास एनिसोट्रॉपी है वेलोसिटी में, यानी कि आपके पास टी पैरेलल और टी परपेंडिकुलर आर डिफरेंट। ठीक है, तो इसके लिए हम बाद में जाके पढ़ेंगे। एक डिस्ट्रीब्यूशन आई एम गोइंग टू राइट इट फॉर यू, जैसे पी पैरेलल पी परपेंडिकुलर, इसके साथ मैं एक डिस्ट्रीब्यूशन लेता हूँ सर्टेन कांस्टेंट डेल्टा पी पैरेलल डेल्टा पी माइनस पी परपेंडिकुलर। ठीक है, so we have these kind of, अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पर ये डेल्टा फंक्शन है। इसका मतलब ये है कि आपके पास वो पार्टिकल्स होंगे जिनका पैरेलल मोमेंटम 0 होगा और जिनका परपेंडिकुलर मोमेंटम की कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी। ठीक है, तो इस किस्म की सिचुएशन बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी कॉमन है। आपके पास एनिसोट्रॉपिक टेम्परेचर्स एग्जिस्ट करते हैं, इसको ये कॉमन इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपके पास जहां कहीं मैग्नेटिक फील्ड होगी तो ये सिचुएशन अराइज हो सकती हैं, बिकॉज जो आपके पास पार्टिकल्स अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड होंगे उनका टेम्परेचर कुछ और होगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रही होगी। लेकिन वो पार्टिकल्स जो कि परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहे होंगे उनका टेम्परेचर डिफरेंट होगा, बिकॉज उनके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है या जो आपकी लॉरेंट्ज फोर्स है वो एक्ट कर रही होगी। सो टेम्परेचर की एनिसोट्रॉपी बड़ा एक कॉमन फैक्ट है जो कि हमें एस्ट्रोफिजिकल प्लाज्मास में, या आप समझ लें कि सोलर जो आपका सेटअप है उसमें बड़ी इजीली मिल जाता है ये टेम्परेचर डिफरेंसेस के मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो ये आपके पास जो टेम्परेचर एनिसोट्रॉपी है ये हमारी सोर्स ऑफ फ्री एनर्जी है। ठीक है, तो हमारे पास जो तमाम इंस्टेबिलिटीज है, जैसे हमने देखा कि वो आपके सिस्टम को की एनर्जी को जो है वो लॉस करेगी या एनर्जी को लेकर चली जाएगी, तो तमाम इंस्टेबिलिटीज जो है वो डेंजरस नहीं होती। ठीक है, कुछ ऐसी होती हैं जो कि हमारे सिस्टम को जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाती हैं और दे आर हेल्पफुल इन सर्टेन मीनिंग्स, लेकिन स्टिल हम अवॉइड करते हैं जो भी हमारे पास प्लाज्मा कन्फाइनमेंट के सेटअप्स होते हैं, वहां पर हम कोशिश करते हैं कि हम जो भी आपके पास इंस्टेबिलिटी की वजह बनने वाली चीजें हैं
उनको हम अवॉइड करें। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछे। सर ये जब इंस्टेबिलिटी आएगी प्लाज्मा में तो जी हर दफा मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो खत्म हो जाएगी हमारे सिस्टम में? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि हमारे पास मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि हम जो इंस्टेबिलिटी की वजह बनती है, अगर आपके पास मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर कोई और वजह हो सकती है इंस्टेबिलिटी की। जैसे मैंने कहा कि मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन है लेकिन आपने बीच में एक बीम जो है एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ फ्री एनर्जी बाहर से कहीं सिस्टम पे अप्लाई कर दी, ठीक है, उसको प्लाज्मा में से गुजार दिया, तो वो भी इंस्टेबिलिटी जनरेट कर देगी। लेकिन अगर आप मैक्सवेलियन से डेविएट करते हैं, आपके पास कुछ इस किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन है, तो फिर यहाँ पर आपके पास सोर्स ऑफ फ्री एनर्जी अवेलेबल है। ये जो सिस्टम है ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पे नहीं है। ठीक है, बेसिकली जो आपका मैक्सवेलियन है वो तो आपका समझ लें कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के ऊपर है ना। जी सर। ये तमाम चीजें इन बैलेंस हैं। जैसे ही कोई आपके पास सोर्स ऑफ फ्री एनर्जी आएगा, वेव एक्साइट करेगी, तो डेफिनेटली वहां पर आपके पास जो है वो मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, फिर वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। यस, ठीक है, एग्जैक्टली। ये बिल्कुल इसी तरीके से है, बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि जो मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको भी आप कहते हैं वो ऐसे है। अगर आपने कोई सोर्स ऑफ फ्री एनर्जी डाल दिया तो यही डिस्ट्रीब्यूशन उठ के इस तरीके से चला जाएगा। ठीक है, ये सारे पार्टिकल्स हाई एनर्जी पे चल जा सकते हैं। कोई आपने और सोर्स लगाया तो सारे पार्टिकल्स जो हैं वो लो एनर्जी पे आ गए और बहुत कम जो है वो आपके हाई एनर्जी के ऊपर मौजूद होंगे। सो ये शिफ्ट है सोर्स डालने की। जैसे जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये है, और आपके पास जो चेंजेस आती हैं वो ये और ये हो सकती है। ठीक है, यस सर, क्लियर। चल अब मैं जो हूँ वो पहली एक जो इंस्टेबिलिटी है उसकी तरफ जाऊंगा, जो कि हमारे पास स्ट्रीमिंग इंस्टेबिलिटी है। ठीक है, तो मैं उसको डिस्कस करना चाहूंगा। अगेन अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अभी पूछ ले, फिर मैं उसको So here we are going to talk about streaming instability. यहाँ पर हम कंसिडर ये कर रहे हैं कि हमारे पास एक प्लाज्मा है जिसमें आपके पास देर आर मैनी कंडीशंस। ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है कि कोई एक स्पीशी जो है वो स्ट्रीम कर रहा हो। स्ट्रीम से मुराद ये है कि आपके पास किसी एक स्पीशी की, लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन और स्ट्रीमिंग, इसका मतलब ये है कि उनका v नॉट एग्जिस्ट करता होगा। ठीक है, इनिशियल कोई वेलोसिटी जो हम, आपको याद होगा जो फ्लूइड डायनेमिक्स में पहले हम जो टर्म को इग्नोर करते रहे हैं कि हमारे पास v नॉट तो है नहीं, सो वी आर गोइंग टू ड्रॉप दिस टर्म। अब हमारे पास वो v नॉट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम कर रहे हैं, आयंस जो हैं वो स्ट्रीम नहीं कर रहे। यानी कि v नॉट आई, चले मैं v नॉट e जो है वो नॉन जीरो है और v नॉट आई जो है वो जीरो है। ठीक है, जो वेलोसिटी है। अब यहाँ पर आसानी के लिए, जस्ट टू कीप थिंग्स सिंपल, हमने टेम्परेचर्स को जो है वो इग्नोर किया हुआ है। ठीक है, और
इसके अलावा हमने मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो 0 ली हुई है। ठीक है, तो ये आपके पास 4 कंडीशंस हैं जिनको हम लेके चलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम कर रहे हैं, आयंस जो है वो रेस्ट पे हैं, टेम्परेचर नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड 0 है। ठीक है, अगर आपके पास ये सिचुएशन हो तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर इलेक्ट्रॉन्स है उसको अगर मैं लिखूं तो m n, चले मैं इसको फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग लिखता हूं। As I have not taken any magnetic field ना temperature, तो बाकी जो 2 टर्म्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पर इनिशियली ई नॉट भी नहीं है जो यूजुअली हम लेते ही नहीं है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को लीनियराइज करूं तो मेरे पास एन नॉट पार्शियल v1 बाय पार्शियल t प्लस, अब यहाँ पर आपके पास कुछ टर्म्स एक्स्ट्रा आएंगी। ठीक है, ये हमारे पास टर्म एग्जिस्ट करेगी जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये वाली टर्म, ठीक है, जो पहले आपके पास सिचुएशन थी वहां v नॉट 0 होता था तो ये टर्म ड्रॉप हो जाती थी। ठीक है, इसको अगर मतलब यहाँ पर आप v को v नॉट प्लस v1 पुट करें और इधर भी v नॉट को v नॉट प्लस v1 पुट करें। ठीक है, तो आपके पास टर्म्स बनेंगी जिसमें v नॉट प्लस डेल डॉट डेल के साथ आएगी और इसी तरह ऑनवर्ड आपके पास टर्म्स आती चली जाएंगी। तो यहाँ पर ये टर्म जो है आपकी सरवाइव करती है। दैट्स अ इम्पोर्टेंट टर्म इन द डिस्कशन ऑफ दिस इंस्टेबिलिटी, जो पहले नहीं थी। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं ये एन नॉट है थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ, और इसके पर जो साइनोसाइडल करेक्टर है अगर उसको मैं अप्लाई कर दूं तो यहाँ से आएगा माइनस एयोटा ओमेगा v1 प्लस v नॉट डॉट एयोटा k ve1 और तो यहाँ से ve1 आपके पास आ जाएगा e ओवर m। So that's your first equation। ठीक है, जिसको हमने यूज करा। अब यहाँ पर एक तरीका ये है कि आप दोबारा यही इक्वेशन लिखें, इसी को फॉर आयंस लिखें। ठीक है, और यहाँ पर टर्म सब्स्टिट्यूट करें। सिंपल ये होगा कि v नॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो यहाँ से ये सिंप्लीफाई होके आपके पास vi1 बन जाएगा। आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली कि आपके पास vi1 जो है वो होगा e की जगह लाजमत है, अगर आप इस आयोटा को अगर मैं खत्म करूं तो दैट विल बी माइनस आयोटा e। तो vi1 के लिए मैं इसको करूंगा कि दैट विल बी आयोटा e ओवर m ओमेगा e1। सो दैट्स माय सिंपल क्या किया कि k v नॉट एग्जिस्ट नहीं करता या v नॉट एग्जिस्ट नहीं करता फॉर आयंस, और यहाँ पर सॉरी ये कैपिटल है। ठीक है, सो दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। तो हम इन टर्म्स को फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन ये आएंगे। अब उसके बाद आप करेंगे जो आपके पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है
उसको हम सॉल्व करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, आपके पास पार्शल n बाय पार्शल t प्लस डेल डॉट एन वी इक्वल 0। अब यहाँ देखें, अगर मैं n को n0 प्लस n1 और v0 को v0 प्लस v1 पुट करूं तो मेरे पास जो टर्म्स आती हैं वो मैं लिख देता हूँ। चले मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देता हूँ आपको। ये जो nv है दैट बिकम्स n0 प्लस n1 v0 प्लस v1 और यहाँ पे डेल ऑपरेटर। सो वी हैव n0 v0 plus n0 v1 plus n1 v0 plus n1 v1। तो ये आपके पास जो है ये नॉन लीनियर टर्म है और आपके पास ये टर्म और ये टर्म एग्जिस्ट करे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप इसके पर डाइवर्जेंस लगाएंगे तो आपके पास n0 डेल डॉट v0 और v0 डॉट ग्रेड ऑफ n0। तो हमने ग्रेड n0 नहीं लिया हुआ, देयर इज नो डेंसिटी ग्रेडियंट, ग्रेड n0 इज 0। तो यहाँ पर आपके पास और इसी तरीके से आपने वेलोसिटी में भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं ली हुई, डेल डॉट v0 भी 0 है, तो ये टर्म भी वैनिश हो जाएगी। Now you are left with these two terms, n0 v1 और n1 v0। तो यहाँ पर जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो एक टर्म आएगी, मतलब इन दोनों को अगर आप कंसिडर करें तो इधर से आपके पास अप्लाई करें डेल डॉट n0 v1, so it turns out to be n0 डेल डॉट v1 प्लस v1 डॉट ग्रेड n0, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप डेल डॉट n1 v0 को करें सो इट विल कम n1 डेल डॉट v0 प्लस v0 डॉट ग्रेड ऑफ n1, ठीक है। अब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, so you are left with these two terms, n0 del dot v1 and v0 dot grad of n1। so इस सारी टर्म की जगह पर, या you can say कि इस सारे की जगह पर you will get these two derivatives, this del dot v1 and v0 dot grad n1। अच्छा, यहाँ समझने की बात यह है कि ग्रेड n1 0 नहीं है, ये परटर्ब डेंसिटी का ग्रेडियंट है जो एग्जिस्ट कर सकता है, जो इक्विलिब्रियम डेंसिटी है उसमें ग्रेडियंट नहीं है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था डेंसिटी ग्रेडियंट के बारे में, जिसमें आपके पास सेंटर में जो है लेट्स सपोज के डेंसिटी ज़्यादा है और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं सिलेंड्रिकल कॉलम में तो वह डेंसिटी कम होती जाती है। तो वो डेंसिटी ग्रेडियंट की बात कर रहा हूँ जो इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट है, ठीक है। ये आपका परटर्ब डेंसिटी ग्रेडियंट है जो कि एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो अब आपको ये दो इक्वेशंस एक में रखनी है 1 और 2, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये डेल डॉट एन वी की जगह पर एन नॉट डेल डॉट वी वन और वी नॉट डॉट ग्रेड एन वन आएगा। अच्छा सर, ये एक मेरा क्वेश्चन था, इसमें जो आपने वो नॉन लीनियर टर्म की वजह से वो n1 v1 को जो नेग्लेक्ट किया था वो कैसे किया है? मतलब ये नॉन लीनियर टर्म है ना, हम लीनियर एनालिसिस कर रहे हैं, हम करते अच्छा ही लीनियर एनालिसिस हैं, ठीक है। हम नॉन लीनियर, मैंने आपको जैसे स्टेबिलिटी में बताया था ना कि आपके पास अगर लीनियर एनालिसिस करोगे तो सिस्टम जो है लेट्स सपोज स्टेबल में है, आप हायर ऑर्डर टर्म्स को लेके आओगे तो हो सकता है सिस्टम जो है वो अनस्टेबल हो जाए। जो शुरू में मैंने वो आपको डायग्राम बना के दी थी ना, अगर आपने देखिए, लेट मी शो इट टू यू अगेन। मैं इस डायग्राम की बात कर रहा हूँ कि हम इसको
लीनियर स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि यहाँ पर ये जो है ये लीनियरली स्टेबल है और नॉन लीनियरली ये अनस्टेबल है। इसी तरह ये यहाँ पर लीनियरली अनस्टेबल है लेकिन नॉन लीनियरली ये स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। ये हायर ऑर्डर टर्म्स हैं जो इसमें हम ऐड करें, ठीक है। तो अगर आप हायर ऑर्डर ऐड करेंगे तो डेफिनेटली उसके इफेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर हम जो है वो जो केस कंसिडर कर रहे हैं उसमें हम लीनियर एनालिसिस कर रहे हैं, इस वजह से वो N1 V1 नॉन लीनियर टर्म है जिसको हम इग्नोर कर देंगे। सही है सर। ठीक है, चल अब यहाँ पर जो मेरी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वहां से पार्शियल n E1 बाय पार्शियल t प्लस n नॉट del dot VE1 plus V नॉट dot grad। तो ये इक्वेशन है जो कि फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मेरे पास आएगी, ठीक है। और इसको भी मैं NE1 रखता हूँ, और ये V नॉट तो एग्जिस्ट ही इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहा है तो मैं इसको सब नहीं मज़ीद करता। अब यहाँ पर आप इसका जो हमने परटर्ब क्वांटिटीज की डिफाइन की हुई है कि तमाम परटर्ब क्वांटिटीज जो एक्सपोनेंशियल एटा के एक्स माइनस ओमेगा टी होंगी, तो उसकी वजह से आप माइनस एटा ओमेगा NE1 नॉट एटा के डॉट VE1 इसको कॉमन लें तो ये आपके पास ओमेगा माइनस के डॉट वी नॉट NE1 तो यहाँ से आप NE1 को निकाल सकते हैं, दैट इज नॉट तो ये है आपके पास NE1, ठीक है। लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 3। On the same footing you can find out NI1। आप इसको सेपरेटली सॉल्व भी कर सकते हैं या फिर ये कि डायरेक्टली इस इक्वेशन में देयर इज नथिंग एल्स दैट यू आर गोइंग टू चेंज दिस। V नॉट इज नॉट फॉर आयंस, सो यू कैन राइट सिमिलरली N नॉट K dot VI1 divided by omega. So that's your equation. अब हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन है जिसके जरिए हमने इन इक्वेशंस को प्रिंट करना है, दैट इज द पॉइसॉन्स इक्वेशन। del dot E1 4 pi E NI1 minus NI1, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन है। नाउ यू कैन सी कि ये आपके पास NI1 की वैल्यू भी है, NE1 की वैल्यू भी है। सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू हियर, iota K dot E1 equals K dot VI1 by omega minus ठीक है जी। ये आपके पास जो है
सिचुएशन बनती है। अब हमारे पास VI1 की वैल्यू भी है, VE1 की वैल्यू भी है, उसको अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें तो K.E1 ओके, तो आपके पास VI1 की वैल्यू थी, उसमें आपके पास E1 E/m ओमेगा था। तो so that will be your equation. You can see कि ये K.E1 और ये K.E1 that will be cancelled out, and finally you will get capital omega p square by omega square plus small omega p square by जहाँ पे जो कैपिटल ओमेगा पी स्क्वायर है वो 4 पाई n नॉट स्क्वायर बाय कैपिटल M है, और स्मॉल ओमेगा पी स्क्वायर 4 पाई n नॉट स्क्वायर बाय स्मॉल m है। तो ये आपके पास सिचुएशन है फॉर दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव्स, जो कि आपके पास किसी भी सिस्टम में जहां पर आपके पास कोई स्ट्रीम कर रहा है प्लाज्मा, उसमें ये एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओमेगा को जब आप 0 पुट करेंगे तो एक इन्फिनिटी आएगा, ओमेगा को KV0 पुट करेंगे तो एक इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन को मैं अगर प्लॉट करूं तो मेरे पास जो है दो इन्फिनिटी की लाइंस आएंगी। ठीक है, तो ये फाइनल एक्सप्रेशन है जिसको अब इस एक्सप्रेशन को हमने एनालाइज करना है। तो अगर किसी के ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछे, मैं बस आज इसका ग्राफ करूंगा और फिर बाद में हम इसकी इंस्टेबिलिटी की कंडीशन निकालेंगे। अभी कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो पूछिए। हेलो, यस सर। जी मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने ये एक्सप्रेशन कंप्लीट कर लिया है, तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो फिर मुझसे पूछ ले। यहाँ तक की कैलकुलेशन में क्यों भाई, सारे ऑनलाइन होके चले गए खाने पीने नाश्ता करने? ऐसे हुए क्वेश्चन नहीं आ रहा ज़हन में अभी तक। क्या नहीं आ रहा? क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा आ- कोई ज़हन में। क्वेश्चन नहीं कोई जहन में आ रहा। चलो, क्वेश्चन नहीं आ रहा तो कम से कम अपनी प्रेजेंस का तो सबूत दे दें। बाकी तो सब ऐसा लग रहा है कि ऑनलाइन हो गए तो जो है वो नाश्ता करने चले गए या चाय शाय पी रहे हैं, नो सर। और या फिर अच्छा, या फिर छोटे भाई को कह दिया कि मेरी जगह ऑनलाइन हो जाना और बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, प्रेजेंट है। अच्छा अच्छा जी, और वकास की तरफ से अभी तक नहीं आया कोई जवाब। सर प्रेजेंट हूँ, लेकिन इंटरनेट बहुत खराब है तो उसकी वजह से वो फिर बाद में सुन अच्छा, लेगा। और सनिया? यस सर। मैंने कहा मैं फिर अटेंडेंस, मुझे लगता है मुझे अटेंडेंस ले लेनी चाहिए, पता लगे वाकई कोई बंदा प्रेजेंट है कि नहीं, या फिर ये कि मैं सबसे कहूँ कि अपना वीडियो कैम ऑन करें, मुझे पता लगे आप लोग
तो वहां पर मौजूद भी है कि नहीं? नहीं ये सर, भी प्रेजेंट सर, है। वीडियो वाला सर सीन खराब है सर। अच्छा अच्छा, चले। हाँ जी, उस्मान है यहाँ पर? जी सर मैं इधर ही हूँ। अच्छा, चलो अच्छी बात है। और कौन रह गया? ज़ारा। जी सर, मैं इधर ही हूँ। जी सर। अच्छा, चले, ठीक ठीक ठीक। और साइका से तो शायद साइका ने पहले अपनी आवाज सुना दी है। सर मैं इधर ही हूँ। ठीक। अच्छा, ये मारिया जो है वो अक्सर ऑफलाइन रह रही हैं। सर कुछ मेरी आइडिया लगी। है? जी जी, आपकी आपकी आवाज आ गई है मुझे। ये मारिया आज सर एब्सेंट है? सर हमारी यूजुअली होती हैं, आज नहीं है। अच्छा अच्छा, चलें। असल में हमने आप अटेंडेंस भी आप लोगों की मार्क करनी है ना, तो थोड़ा सा जहन में रखना पड़ता है कि कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट है। चलें। अच्छा, अब ये अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो मैं इससे थोड़ा सा आगे चलूंगा। बस आज इसको हम सिर्फ प्लॉट करना देखेंगे और उसके बाद जो है वो ऑनवर्ड ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया इस चीज का? जी सर। अच्छा, यहाँ पर इसको अगर मैं मैथमेटिका में प्लॉट करूं, चले मैं मैथमेटिका ऑन करता हूं। पहले मैं इसकी थोड़ी सी अगर आपको बना दूं सिचुएशन के, लेट सपोज के मैं 1 इक्वल्स, इसको मैं x कह दूं, x स्क्वायर प्लस, और क्या है, इसको यहाँ पर भी ओमेगा पी स्क्वायर बाय ओमेगा पी स्क्वायर सम x माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये नजर आ रहा है आप लोगों को? जी सर। यस सर। यहाँ पर मैं ये बेसिकली ये मैं सारा कुछ इंटरप्रेट कर रहा हूँ ताकि मैं इसी चीज को मैथमेटिका को दे सकूं। तो इसको मैं सम अल्फा ओवर x माइनस y के बजाय अगर मैं चले y रहने दें क्योंकि बुक में ऐसा इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर x जो है बेसिकली ओमेगा बाय ओमेगा पी है, ठीक है। और अल्फा जो है वो ओमेगा पी बाय कैपिटल ओमेगा पी है। और y जो है वो आपका के डॉट वी नॉट बाय कैपिटल ओमेगा पी है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये हमारी कुछ स्विच। अगर इसी चीज को मैं अगर अब यूज करना चाहूँ टू प्लॉट इट इन मैथमेटिका, तो बेसिकली मैंने ये जो राइट साइड है इसको प्लॉट करना है, ठीक है। मैं चाहे राइट साइड को प्लॉट कर लूँ या ये वन, इसको वन को नहीं मैं रखूंगा, आई विल कॉल इट सम फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। तो बेसिकली मैंने ये जो फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है उसको प्लॉट करना है। ओमेगा मेरी फ्रीक्वेंसी है, मेरा वेरिएबल है। और ये जो वाई है ये इट्स अ काइंड ऑफ वेरिएबल, लेकिन मैं किसी एक फिक्स प्लॉट के लिए इसको फिक्स रखूंगा, ठीक है। यानी कि वी नॉट वेरी कर सकता है। अब जो हमारा मेन मकसद ये होगा कि हम इस वी नॉट के कंडीशन निकालेंगे कि वी नॉट की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि आपके पास ये जो स्ट्रक्चर बना है ये अनस्टेबल सिचुएशन दे या इंस्टेबिलिटी दे, ठीक है। तो अब मैं आपको मैथमेटिका पे एक मिनट इसको मैं शेयर करता हूँ आपसे, एक मिनट।
अब मैं यहाँ पर, ये अब आपको मैथमेटिका की स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। जी सर आ रही है। बेसिकली मैंने प्लॉट करना है सर क्या आप 1/, बता देंगे इसके प्लॉट के अंदर आप फ्रैक्शन के लिए कौन सी कमांड इस्तेमाल कर रहे हैं? फ्रैक्शन के लिए? फ्रैक्शन समझ नहीं आई, क्या मतलब? सर सर फ्रैक्शन के लिए यानी कि ये 1/x² जो आपने लिखा है ना, इसकी जो यानी कि ये फ्रैक्शन इस तरह, वो मैंने जो कमांड इसकी चेक ये ऊपर यहाँ पर कंट्रोल जी, ये यहाँ पर ऊपर है पैलेट्स, वो असल में आपको शो नहीं कर रहा क्योंकि मैंने सिर्फ ये स्क्रीन शेयर की हुई है मेन। ये पैलेट्स का नजर आ रहा है आपको ऊपर लिखा हुआ? हाँ जी आ रहा है। इसमें पैलेट्स को क्लिक करेंगे तो इसमें बेसिक मैथ असिस्टेंट आता है। ठीक, ये नजर आ रहा है आपको बेसिक मैथ असिस्टेंट? हाँ जी आ रहा है। हाँ जी, इसको अगर आप क्लिक करेंगे ना तो फिर वो आपके सामने एक पैनल खुल जाएगा जिसमें ये तमाम जो है वो फ्रैक्शंस को बनाने का लिखा हुआ है। ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पर मैं इसकी जगह पर, चलिए मैं इसको बी कह देता हूँ। बेसिकली मैंने ये चीज प्लॉट करनी है और यहाँ पे x की मैंने रेंज रखनी है फ्रॉम 0 टू 10 यू कैन सी। अब यहाँ पर इससे पहले मुझे डिफाइन करना चाहिए व्हाट इज a। लेट्स सपोज हम 5 ले लेते हैं। b जो है लेट्स सपोज 7 ले लेते हैं, ठीक है? ये दीज आर रैंडम वैल्यूज, यू कैन चूज एनीथिंग, ठीक है? तो ये जो मैंने सेमी कॉलन लगाए हैं, इन सेमी कॉलन्स का मकसद ये है कि जब आप ये एग्जीक्यूट होगी तो ये टर्म इनको दोबारा डिस्प्ले नहीं करेगा। अगर आप ये सेमी कॉलन्स हटा दें तो फिर ये यहाँ पर जब एग्जीक्यूट होगा तो दोबारा ए और बी आएगा यहाँ पर लिखा, उससे और कोई मकसद नहीं, ठीक है? तो अब ये मेरा जो है वो इसको मैं प्लॉट करने की कोशिश करूँ। तो अब आप ये देख रहे हैं कि ये मेरे पास कुछ इस किस्म की वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है? मैं इसको थोड़ा सा अब आप ये देख सकते हैं, ठीक है? अब ये आपके पास दो इन्फिनिटी की लाइंस आ रही हैं, ठीक है? तो बेसिकली ये प्लॉट है इसका। अब मैं एक चीज और आपको बताता हूं। C1 जी, ये आप लोगों को नजर आ रहा है जो मैं लिख रहा हूं?
यस सर। ठीक है, तो ये मैथमेटिका पे आप देखें कि मैंने एक प्लॉट को नाम दिया Z1 का, एक प्लॉट, ये मैं अभी बताता हूँ कि मैंने ये क्यों किया। बेसिकली मैं जो आपकी इक्वेशन की जो समझ लें कि जो लेफ्ट साइड थी वो 1 थी, तो बेसिकली मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ, इसका सोल्यूशन निकालना चाहता हूँ। तो आपको अगर याद हो तो हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास दो कर्व्स के जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे वो बेसिकली उनके सॉल्यूशंस होंगे, ऐसे ये याद है। तो फर्स्ट तो समझें कि आपकी 1 एक कर्व है और राइट साइड जो है वो दूसरी कर्व है, जहां पर ये दो कर्व्स मीट कर रही होंगी वो हमारे सॉल्यूशंस होंगे। तो अब आप देखेंगे बेसिकली इस 1 को बनाने के लिए मैंने एक अपनी तरफ से जरा सियाणपति की है, मैंने जरा x बाय x दे के उसको किया ताकि मुझे ये 1 की लाइन दे दे। ठीक है, तो ये आप देखें कि ये मेरे पास 1 की लाइन आ गई। ठीक है, और नाउ यू कैन, अब मैं इसकी जरा प्लॉट रेंज को थोड़ा चेंज करता हूं ताकि मुझे प्लॉट रेंज जीरो प्लॉट रेंज को मैं जरा देखूं। बेसिकली मैं इसको विद इन रेंज लेके आना चाहता हूँ ताकि मैं इस 1 की वैल्यू को बड़ी इजीली देख सकूं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर मैं शायद मुझसे कहीं कोई गलती हो रही है, चलिए मैं अभी इसको प्लॉट रेंज को बताता हूँ। अब यहाँ पर देखें कि ये जहां पर ये कर्व्स मीट कर रही हैं 1 2 3 एंड ऑनवर्ड, ठीक है, ये बेसिकली इसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे। ठीक है, अगर मैं इस कर्व को थोड़ा यहाँ तक 10 तक प्लॉट कर सकूं तो ये 1 जो है थोड़ा शिफ्ट होके ऊपर आएगा और यहाँ पर आपको नजर आएंगी मीट करती हुई, और वो डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ दिस पैरामीटर बी, कि बी को मैंने कितना स्मॉल लिया है या लार्ज लिया है, जो बेसिकली आपका वी नॉट है। ठीक है, तो वेलोसिटी को कम या ज्यादा करने से मेरे पास स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी की सिचुएशन जो है वो अराइज होगी। तो इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आप लोग अपने तौर पर इसको प्लॉट करके देखें। ठीक है, बेसिकली मेरा हमने इस चीज को डिस्कस करना है, इस एक्सप्रेशन को। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे राइट साइड पे ये कर्व होगी, लेफ्ट साइड की ये कर्व होगी, इन दोनों को की जहां पे मीटिंग पॉइंट्स होंगे दैट विल गिव यू द यू कैन से द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है जी, यस सर। जी एनी क्वेश्चन? ठीक है सर। नो सर। अच्छा, आप इसको मैं इसके नोट्स जो हैं वो आपको अभी अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, जो चीज़ मैंने आपको करवाई है वही रिटन फॉर्म में। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट टाइम देख लीजिएगा, हम इसको फिर नेक्स्ट टाइम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसके प्लॉट को आपने कैसे लेना है, इसका मैक्सिमा मिनिमा कैसे आएगा, इसके इंस्टेबिलिटी की कंडीशन क्या होगी और किन वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करेंगे। ठीक है, ओके सर। चलिए आज के लिए इतना ही।
मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज सर। थैंक यू सो मच। और अगर इस वीडियो के बारे में जो भी होता है आप थोड़ा सा फीडबैक दिया करें कि क्या चीज़ बेहतर थी। ये आज मैंने कुछ मार्कर चेंज किया है, थोड़ा सा लिखने को थोड़ा सा बड़ा किया है, तो ये फीडबैक्स आपकी तरफ से आनी चाहिए कि सर अगर इस तरह कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है सर। ठीक है, चलिए, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।